Hello and welcome to my second vlog. And the first vlog is something very just like that. I see my Wiplov's new phone, and this phone got such a good camera. It was quite not planned, and I just like thought of just making something. And then I realized that my throat chakra was also blocked, and I felt really good after making that, even though it was like nothing of the standard that you would put up on YouTube. But I was like, why not just do it? And then I thought that yeah, I've gained like 10 kgs weight. There's Viplov there, it's walking. You can see how much weight gain I have had. I mean, I've not 10. Sorry, I was 48 kgs when I was in college. Then I was 51 kgs when I was in college, and then I used to maintain a weight from 50 to 51 kgs. But this is like 48 से 68 कितना होता है 20 kg right? Yeah, it's a 20 kg weight gain I had. तो देन मैंने सोचा कि चलो ग्लो अप सीरीज़ का कुछ करते हैं. और देन कल आफ्टर आई स्टार्टेड द यूट्यूब थिंग व्हाट हैपेंस इज ये खो गई थी. हर नेम इज़ डार्लिंग. से हेलो. अब द डार्लिंग आज से 10 दिन पहले हमारे पास से खो गई. एंड टुडे शी केम बैक व्हेन विप्लव हैड गॉन टू गेट मिल्क. ही सॉ her downstairs roaming around and he was like, I've seen darling. कहाँ पे? गेट पे. राइट. तो we were, I mean, कल खाली वो चैनल का ये क्या. तो मैंने सोचा कि देखो कल खाली ये स्टार्ट करा और स्टार्ट करते आज ही इतना अच्छा सब गुड न्यूज़ आ गया, तो ये तो बहुत ही लकी हो रहा है. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे ज़्यादा इतना बिना टेंशन लिए चीज़ों को एक पीसफुल स्टेट पे रह सकते हो. और वेट लॉस जो करना है वो एक जर्नी रहता है. और मैंने सोचा कि नथिंग लाइक शेयरिंग इट राइट. आई हैव लॉस्ट वेट मैनी टाइम्स अर्लियर. आई ऑलवेज यूज टू मेंटेन अ वेट ऑफ 51-52 kgs. बट दिस टाइम अराउंड आई हैव बीन फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 6 months के टाइम फ्रेम से कम टाइम में मैंने 20 kg वेट मतलब गेन कर लिया. इट वॉज क्वाइट ड्रास्टिक. तो आई थॉट कि चलो अभी यूट्यूब फिर स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग अ पर्टिकुलर वे एंड आई हैव गेन सो मच वेट. तो बट इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑल्सो बिकॉज वेन यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ यू सी एंड यू पुट सम अटेंशन ऑन योर सेल्फ. तो इट गिव्स यू मोर ऑफ अ चांस टू यू नो एनालाइज कि आप करना मतलब क्या चाहते हो और आप खुद पे ध्यान भी देते हो. बिकॉज अदरवाइज व्हेन यू आर जस्ट डूइंग योर ओन थिंग्स एंड यू आर लाइक सो busy with what's going on and other things, external things outside of you, you don't really put so much of an attention to yourself, right? And you tend to put all your energy outside, and which is why sometimes it gets quite difficult also, right? To even realize that you are not really being your best self. अब वेट जो है वो किसी को दिखाने के लिए किसी को दिखाने के लिए नहीं. अपना जो बॉडी है इट्स नॉट फॉर यू नो अट्रैक्टिंग अदर पीपल और गेटिंग वैलिडेशन और गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स. बट इट्स ऑल्सो it's a healthy thing, right? The more healthier you are. But I used to be so fit all my life. Probably that's why I was like, I don't care about who was going to compliment me for my looks and all. I don't really care about that. So I kind of became detached from my health regime. And I was like, talking about it, why did you go and work on it? Yeah, I'm sharing my struggle right now. Start now. Then share your struggle. First, I'm sharing my struggle. Start. Otherwise, it will like 2 months ago and you're like, yeah, I'm still there. No, I will start, but I'm just sharing my struggle right now. So I realized that in order to change things, you have to fall in love with yourself, and the process involves about caring and loving yourself and believing and like having a positive relationship with yourself. As you can see, I haven't got a haircut also for the longest time, right? So I stopped completely looking at myself. I mean, I don't know if it's self-sabotage or what it is called, but I think if you go through it, you know what I'm talking about. There are 2 states a girl can go into. A very glowed up state that we all want, which is your best version, and a state where you can just put yourself into.
right? And I think I'm like somewhere in the mid right now, because my situation was uh, mm, worse than this actually, because I was like, I had like really high standards when it came to my health routine, because I would make sure that I exercise right and I eat right and all of those jazzy things. But then for the past few months, I stopped. I was very happy and content, and I don't know what it was. I think it was happiness also. I found my love. I mean, I manifested him, and I got back with him. So probably stress and happiness all at the same time just made me very complacent, and I did not want to, exercise. Also, it was summers and it was very hot. So now I want to get back in this journey, and it is interesting to share also why it's important. So how we start is step number one is you pay attention to your space and do some activities that you enjoy, that you genuinely enjoy, which is not thopod on you, moreover like not what is expected of you, but more of something that gives you inner joy, right? And then doing that gives you, so I like doing tarot card reading, and Viplav has also learned it, and it's like so amazing because our souls are healer souls, so we are twin flames. So both of us have this healing nature to us. So when he helps, he healed me. I've been the most healed because of my love, and I've mean I had a lot of anger issues and stuff when I met him initially. But over these years, when you are in a twin flame journey, especially, that kind of in that kind of raises your vibration, and it puts you in a journey of self development, and personal development becomes a crucial part of the relational element. बिकॉज देखो हर रिलेशनशिप सेम नहीं होता. जैसे आपका सोलमेट रिलेशनशिप होगा तो कुछ कुछ रिलेशनशिप्स आपको बस एन्जॉयमेंट के लिए मिलता है, बट कुछ रिलेशनशिप्स आपको अंदर से इवन और बेटर पर्सन बनाने में वो हेल्प करता है. तो मैं ये फील करती हूँ कि द रिलेशनशिप आई शेयर विद विप्लव, उसमें इट्स ए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप. तो जिन लोगों को ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एक्सपीरियंस होता है, दे विल अंडरस्टैंड इट्स नॉट ईजी. इट्स अ रिलेशनशिप जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस होती है, बहुत सारी चीज़ें आप ओवरकम करते हो, बेटर वर्जन और बेटर वर्जन और बेटर वर्जन बनते हो. तो अभी तक आफ्टर माई एवर सिंस आई मेट हिम, मेरा बेटर वर्जन में मैं पता नहीं कितने सारे वर्जन्स क्रॉस कर चुकी हूँ. तो देयर इज़ अ थिंग और टू दैट आई कैन शेयर विद यू टू. ओके, एंड आई ऑल्सो लाइक टू डू टैरो. तो आपके साथ बात करते करते मैं आपको कुछ गाइडेंस भी दे दूँगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. राइट, सो सी द टू कार्ड्स आई गॉट इज नाइन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. तो ऐसे में खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपका जो सोल है वो बाय नेचर ही एक पीसफुल सोल है. हम सब पीसफुल नेचर के सोल्स हैं, और हम जब इस शरीर में आते हैं तो ये शरीर जो है, हाँ, वो एक बस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमें यूज़ करना है टू गेन हैप्पीनेस. अर्निंग मनी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू गेनिंग हैप्पीनेस टू. और तो जब आप एक कुछ काम करते हो जिससे आपको पैसे भी आ रहे हैं और आप खुश भी हो, तो इट इज़ अमेजिंग. ठीक है, तो वो एक एनर्जेटिकल एलिमेंट होता है. और मैं ये विश करती हूँ कि किसी के साथ आप जब कुछ शेयर करते हो और उस शेयरिंग के प्रोसेस से ही किसी को आपके दो कुछ वर्ड्स से अगर किसी को फ़ायदा मिल रहा है, आपके बोलने से, एडवाइस से अगर किसी को लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, तो उससे ज़्यादा कुछ बेटर नहीं हो सकता. तो हमारा जो अभी जैसे हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं विप्लव एंड आई, कितने सारे लोगों का जो बोलते हैं कि उनका डाइवोर्स होते होते वो बच गए, उनका डाइवोर्स होने से बच गया. किसी कोई सुसाइडल फील कर रहा था तो वो बेटर फील करने लग गया. कोई अपने लाइफ में होप गिव अप कर दे रहा था तो उसको लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव मिल जा रहा है होपफुल होने के लिए, और चीज़ों को अच्छे से ये हैंडल कर पा रहे हैं. तो इतना अच्छा लगता है बिकॉज आपके काम से उनको इतना डायरेक्टली फ़ायदा मिल रहा है. तो एक तो वो एलिमेंट है, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है. और दूसरा, तो वी बेसिकली गेट पेड टू या लाइक गाइड हमारी बातों. फॉर आवर वर्ड्स वी आर गेटिंग पेड, फॉर आवर एडवाइस यू आर गेटिंग पेड. तो यू आर बिकमिंग, योर वर्ड्स आर सो वैल्यूएबल.
इट्स एबल टू क्रिएट सो मच इम्पैक्ट ऑन समवंस लाइफ, राइट? तो इट्स अ वेरी गुड कर्मा, वो कर्मा बहुत अच्छा कर्मा होता है। तो आप अगर ये वीडियो देख लो तो आप भी मेक श्योर करो कि आपके मुंह से भी जो बातें निकली है, जो आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उसको कुछ ऐसा बोले जिससे कि वो अच्छा फील करने लगे और उसका लाइफ में वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लग जाए। तो उस पॉजिटिव डायरेक्शन में वो जो मूव करेगा वो आपके कार्मिक कार्ड में ऐड होता रहता है और आपका कर्मा बेटर होता रहता है। तो जितना आपका कर्मा अच्छा होगा तो आपके पास्ट लाइफ के जो बैगेजेस हैं, क्योंकि देखो पास्ट लाइफ का एक इफ़ेक्ट रहता है हम पे, हम जो भी कुछ भुगत रहे हैं, फील कर रहे हैं, हो रहा है हमारे साथ, उसमें पास्ट लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से इस लाइफ में आपको उसका मिलेगा। जितना आप इस लाइफ में अच्छा करोगे तो इस लाइफ में मिलेगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो दैट इज़ अमेजिंग एंड दैट्स वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट यू बी नर्चरिंग and caring, also value earning. So the money that you earn out of that is out of helping others, that has come out of from a pure place that has helped others, so obviously definitely that money is good money instead of the money that has come out of cheating others and frauding others, और जैसे जो सिगरेट्स बेच रहे हैं या शराब बेच रहे हैं तो किसी की लाइफ में अच्छा थोड़ी करे, उनको पता है कि इससे ख़राब होना है, बट वो पैसे तो कमा ही रहे, तो उस पैसे का वैल्यू नहीं है। वो पैसे चीज़ें खरीदेगा बट दैट्स नॉट गुड मनी। तो ग्लो अप की बात कर रहे थे हम। तो ग्लो अप में इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, पहली बात सेल्फ वर्थ को फील करना, सेल्फ वर्थ को अच्छे से समझना कि आप एक खुद को एक वैल्यूएबल पर्सन बनाए, और जितना आप खुद में वैल्यू खुद को एसोसिएट करोगे उतना आप खुद का टेक केयर भी करोगे। आप खुद को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, खुद को एकदम मतलब समझिए कि आप बेस्ट हो, है ना? तो अभी देखो मेरे लिए भी ये वीडियो बनाना एकदम भी आसान चीज़ नहीं होगा, है ना? क्योंकि मैं सोचूंगी कि देखो यहाँ पे मेरे को इधर ये सब मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम हुआ करता था, मेरे चीक्स भी बहुत ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम था, लाइक आई वाज जस्ट 48 and then 51 kgs, right? And now I'm 68 kgs, so I've gained 20 kgs. तो ये 20 kgs का वेट गेन के बाद नेचुरली कॉन्फिडेंस लेवल में भी अफेक्ट करता है, क्योंकि आपका बॉडी टाइप चेंज हुआ तो आपको अफेक्ट तो करेगा, बट यू हैव टू लव योर सेल्फ नो मैटर वॉट। इट्स गोइंग टू बी अ जर्नी, इट्स अ मैराथन। मैराथन कभी भी आसान नहीं होता है, एक दिन का रहेगा नहीं कि एक दिन आप वर्कआउट करोगे और वापस से आपका जो ड्रीम बॉडी है वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी आपका बॉडी टाइप है, शेप है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्ट कर लिया, तो मतलब वर्क ऑन इट बट नॉट फ्रॉम अ स्पेस ऑफ एंग्जाइटी, शुड बी डन विद अ स्पेस ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड। तो आज अभी मैं जाऊँगी, जाके पहले नहा लूँगी एंड विल टेक अ नाइस शावर एंड I've enjoyed a lot of this lone time and Viplav has also been to this hermit mode. तो अगर आप लाइफ में एक hermit mode से गुजर रहे हो, that is like you are alone, sometimes you feel like you don't feel like interacting with others, तो उसको नेगेटिव तरीके से ना ले, बट अंडरस्टैंड दैट यूनिवर्स जब आपको अपडेट कर रहा है, नेक्स्ट वर्जन बना रहा है, बेटर वर्जन बना रहा है, और आपको बहुत सारे सिद्धियाँ प्राप्त होगी या आप चीज़ों को गेन कर रहे हो, तो आप इससे गुजर सकते हो। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू बी। इसमें आपको इंट्रोस्पेक्ट करना और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आई जस्ट शोड माई लिटिल बिट ऑफ टैरो एस्पेक्ट्स आल्सो इन दिस। सो द लास्ट वीडियो वाज लाइक एकदम रैंडमली स्टार्टेड, एंड इन दिस वीडियो आई हैव मेड अ लिटिल इम्प्रूवमेंट बिकॉज आई एम सिटिंग एंड टॉकिंग राइट नाउ। तो ऐसे ऐसे करके आई विल मेक मोर वीडियोज़ जिसमें आई विल टॉक अबाउट ग्लो अप, फैशन, makeup products, movies, music, just name it, I'll do it all. And this place will be like a space where I can just share and get a different perspective about things. It's a full completion of life. एक total completion जब आपको मिलता है, आपने सब कुछ अचीव कर लिया, आपने जो जो चाहा, तो आप एक ग्रोथ से गुजरेंगे और आपका क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगा। तो लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें अचीवमेंट आई फील हैव ऑलरेडी डन इट, राइट फ्रॉम मैनिफेस्टिंग द लव ऑफ माई लाइफ, द करियर आई कुड एवर इमेजिन,
all whatever I wanted, I've always manifested it. I think I only manifested this mota self also, because I used to be very slim, and then there is this fear I had attached with my slim self. That was, people get jealous when you are looking very, when you have a very good body type and you're very slim and all. Sometimes a lot of women get jealous of you also, because ये jealousy आपको face करनी होती है, because you look a certain way and your waist is this tiny. So people just say like things. So to blend in, to gain weight, you can blend in and you can become little, मतलब you will not stand out and you can just blend, right? So maybe to get acceptance and to not be standing out as this really nice figure and all, I manifested this style. But now I want to get back to shape, so you also should do that. Don't get scared of the criticisms and all. You can just, the thing is, the thing is, it's just about the vibe you pull in. So the vibe should be a good vibe. You should just feel good about yourself, no matter what. You should just be happy and content. And growth is definitely coming, because growth is a mind space. For growth to come, you have to be nurturing. See the Empress. See this card. So this is the Empress card in tarot. It talks about how a woman can be so fertile and she can give birth, right? She gives birth, she can grow, she's nurturing, she's all this feminine trait of growth and all. So that is some trait that you can have. Even men and women, everybody can have that trait. And being adventurous brings that happy confidence in you. You should not be worried so much about things and believe in your dreams. Okay. Please subscribe to my channel. Let's have this journey together. And I will share a lot of things with you. And you want to have any, if you want to share your personal life stories on how you combat weight gain, you can share it here. And bye.